ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਫਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਗਾਵਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਫਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਆਵਾਜ਼। ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼, ਮੰਤਰ, ਧੁਨੀ, ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੈਰੂਨੀ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗਿਆਨ ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਰੂਪ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਵਾਰੋ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ,
देखदियां ही बने। और देखदियां देखदियां ध्यान किधरे अंतर्मुखी होवे, थकन ये अखां, इनू त्राटक ध्यान करके भी कहते हैं अखां नूं एक थां ते टिकाना, ताकि ध्यान अंदर मुड़े। बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। गुरु नानक ने इसनूं नहीं चुनिया, कारण जिंदगी बड़ी थोड़ी है ते कम बहुत ज़्यादा है। समा बहुत थोड़ा है ते सफ़र बड़ा लंबा है। नक्शे ही वेखते रह जाइए। चलो एक दो दिन नक्शा वेख्या जा सकता है, रोज़ नक्शा हाथे चाहे तो वेखते रहिए। ऐ सड़क है, इत्थे पहुँचना है, इत्थों चलना है। चलो एक दिन ਲਈ तो माफ़ किया जा सकता है। रोज़ जिहड़ा थोड़ा बहुत धर्म ਲਈ समा मनुख कढ़े, वो नक्शे ही वेखदा रह जाए, सिर्फ नक्शे, फिर चलेगा कदों। इस वास्ते गुरु नानक ने चलण ते जोर दिता। असलियत आपे दिखाई दे जाएगी। एक दिन जब पहुंच जाओगे फिर पता चल जाएगा। जो मकान के अंदर दाखिल हो गया उसनों सारा बोध हो जाएगा। सतगुरु ने जो कुछ सिद्धांतिक नुकते रखे है वो वही ने जो परमात्मा ने आप बना के रखे ने, ईश्वर ने आप बना के रखे ने। ईश्वर की समझ पैंदी है ईश्वर दे ही बोलां नाल। ईश्वर नाल मनुख जुड़ सकता है, गल्लां बातां कर सकता है ईश्वर दे ही बोलां नाल। महाराज ने एक बड़ी कीमती गल कह दी है, नाल इयाणे दोस्ती, एक ते इयाणा अपने तो थले, दूसरा वड्डा रूस अपने तो वड्डा। एक अपने तो वड्डा, एक अपने तो छोटा। इसकी दोस्ती महाराज कहते ते पानी अंदर लीक जा, इधर लीक मारी मिट गई। ये दोस्ती नहीं टिकेगी, ये रिश्ता नहीं टिकेगा। आम पंजाबी एक मुहावरा है, हाण नूं हाण प्यारा है। बच्चों के संबंध बच्चों नाल जुड़ते हैं, जवानां दे जवानां नाल और बुढ़ियां दे बुढ़ियां नाल। बेशतर बजुर्गों ने कहा है पोतरे साडे कोल बैठदे ही नहीं। बेशतर माँ बाप ने गिला किया है पुत्र साडे कोल बैठदा ही नहीं, साडी गल नहीं सुनदा। और सानू कुछ सुनावे, साडे कोल कुछ सुने, साडे कोल कुछ बैठे, ये पोतरे बैठदे ही नहीं। कौन दसे हाण नूं हाण प्यारा है। ये तो पानी की लकीर है, वक्ती तौर पर लकीर कढ़ी जा सकती, थोड़े जिहा छिण लई बैठ सकते हैं। और जो थोड़ा जिहा देर भी बैठणगे बस मिटण लई, वो भी उगताया है। तालमेल नहीं बैठता, संबंध नहीं जुड़ता। और इसकी बहुती खिच भी नहीं करनी चाहिए। ये पोतरे बैठते नहीं कोल, इसकी बहुती तड़प भी नहीं रखनी चाहिए। पातशाह कहते ने एक इयाणे नाल दोस्ती, एक वडारू नाल दोस्ती, अपने तो वड्डे नाल। ये पानी की लकीर है। आसा दीवार रोज़ तुसी सरवण करते हो, बड़ी गजब की ये बाणी है गुरु नानक देव जी महाराज की। तालमेल बैठेगा समतल ते, बराबरी दे तल ते, वरना नहीं बैठता, कतई नहीं बैठता। एक गायक चोटी दा होवे, साजां दे वजाण वाला वजंतरी बिल्कुल इयाणा होवे, नवा नवा होवे, तालमेल नहीं बैठेगा। एक गायक शास्त्रीय संगीत का पंडित होवे, ध्रुपद विच गाण वाला होवे, और तबला वजाण वाला सिवाय कैरवे तो होर कुछ जानदा ना होवे, तालमेल नहीं बैठेगा।
उत्ते द्रौपद गांदा है, उत्ते ख्याल गांदा है, उत्ते ठुमरी गांदा है। इनू सिर्फ कैरवा वजाना आउंदा है, ये तालमेल नहीं बैठेगा। भावें ताल की लोड़ है, भावें वो तबला वजा लैंदा है, पर उस तल ते नहीं जिस तल ते वो गा रहे है। इनू कहंदे ने तालमेल नहीं बैठिया। सुर दा ताल नाल तालमेल नहीं बैठे, तो जब तालमेल ही ना बैठे तो कुछ भी नहीं आता। बच्चे का बुढ़े नाल तालमेल नहीं बैठता। आंतरिक अंदरूनी बैरूनी गल अलग है। एक बुढ़े का बच्चे नाल तालमेल नहीं बैठता, अंदरूनी। ये गल वखरी है कि बच्चा उसको कितना भी प्यारा लगे और कितना भी वो चाहे, तालमेल नहीं बैठता। अपने तो वड्डे नाल और अपने तो छोटे नाल, सियाणे दा मूर्ख नाल, मूर्ख दा सियाणे नाल तालमेल नहीं बैठता। क्रोधी दा शांतमई नाल, शांतमई दा क्रोधी नाल तालमेल नहीं बैठता। संतोखी दा लोभी नाल, लोभी दा संतोखी नाल तालमेल नहीं बैठता। हंकारी दा निर्माण नाल, निर्माण दा हंकारी नाल तालमेल नहीं बैठता। जिथे रोज बैठिए, दो रोज बैठन ते फिर भी आंतरिक कोई संबंध ना जुड़े तो समझ लेना तालमेल नहीं बैठे। ये गल वखरी कि 2-4 घंटे बैठ जाते हैं। सतगुरां ने तो इत्थे तक भी कह दिता, असी उसनूं पति पत्नी भी नहीं कहते, सारी जिंदगी इकट्ठे रह गए, इक्को ही घर दे बतीत कर दी। धन पिर ए ना आखियन, भुल के भी इन्हों ना आखोए पति पत्नी ने। बहन इकट्ठे होए, भावें इकट्ठे रहते पे ने, सारी जिंदगी इकट्ठी बतीत की है, जीवन भर इकट्ठे रहे ने, अंतिम समय तक इकट्ठे रहे ने, रिश्तियां दराड़ नहीं पई, टुटे नहीं। लेकिन साहब कहते फिर भी मैं पति पत्नी नहीं कह सकता। क्यों? तालमेल ते बैठे नहीं, आंतरिक संबंध ते जुड़े नहीं। धन पिर ए ना आखियन, बैन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कईए सोए। बाहरों भावें दो मूर्ति आवन, अंदरों एक हो जान। अंदरों एक ताई हो सकते ने, समतल होवे, एक खड्ड दे च खड़ा है, एक टीशी ते खड़ा है, तालमेल नहीं बैठेगा, संबंध नहीं जुड़ेगा। एक इयाणे नाल दोस्ती, एक वडारू नाल दोस्ती। वड्डारू सोना अपने तो वड्डा, ये वड्डा चाहे शरीर करके है, ये वड्डा चाहे अकल करके है। ये छोटा चाहे शरीर करके है, ये छोटा चाहे समझ करके है। तालमेल नहीं बैठेगा। कदी गूढ़ी दोस्ती देखी 5 साल के बच्चे की ते 80 साल के बुढ़े की, किस तरह तालमेल बैठेगा? हो ही नहीं सकता। भावें श्लोक धन गुरु अंगद देव जी महाराज का है, दूजे पातशाह का। अब की ज्ञात लिए अर्ज करा, आसा दीवार दे गालबन 14 श्लोक दूजे पातशाह के ने, गुरु अंगद देव जी महाराज के। सारे श्लोक पहले पातशाह जी के नहीं ने। आसा दीवार दे बेशतर श्लोक पहले पातशाह के ने, पर कुछ दूजे पातशाह जी के ने। ये श्लोक भी दूजे पातशाह का है। अपने तो वड्डा, अपने तो छोटा, गूढ़ा संबंध नहीं जुड़ेगा। अगर संबंध जोड़न की भी कोशिश की थी, वक्ती तौर पर जुड़नगे, जिमें पानी अंदर लीक, ज्यों इधर लकीर मारी इधर मिट गई। कोई लकीर रही है पानी दे, ये दोस्ती नहीं रहेगी, ये संबंध नहीं रहेगा। अगर रिया संबंध दोवें इकट्ठे रह जाएंगे, ये पोतरा ते दादा एक घर दे रहिंदे पे ने, आंतरिक कोई संबंध नहीं है, गुस्ताखी माफ, कोई रिश्ता नहीं है, अंदरों कोई जोड़ नहीं है। ये गल वखरी है कि इस पोतरे नूं दादा प्यारा होवे, इस दादे नूं पोतरा प्यारा होवे, कोई अंदरों संबंध नहीं है, समतल नहीं है, बराबरी नहीं है। ये बराबरी चाहे शरीरक तल दे होवे ते चाहे अकल दे तल दी होवे, बराबर नहीं आउण देंदी।
कई दफ़ा ऐसा होंदा है शरीर छोटा होंदा है अकल वड्डी होंदी है, कई दफ़ा ऐसा होंदा है शरीर वड्डा होंदा है अकल छोटी होंदी है। हरनाकश का शरीर बहुत वड्डा 75 साल का, अकल बहुत छोटी। प्रहलाद का शरीर बहुत छोटा 5 साल का, अकल बहुत वड्डी। तालमेल नहीं बैठा, प्यो पुत्र का तालमेल नहीं बैठा और बड़ी करारी दुश्मनी, फासला बहुत ज़्यादा सी और जिथे जितना ज़्यादा फासला होगा वो उतना ओपरा प्रतीत होगा। हरनाकश नूं इंज प्रतीत होया जिवें मेरा बच्चा ही नहीं है और प्रहलाद नूं ऐसा महसूस होंदा है पिता है, ये प्यो है, भुखा मार रहा है, जेल दे सुट दिता है इसने, तसीये दे रहा है, दुख दे रहा है। ये बच्चा किस तरह कह सकता है मेरा प्यो है, और ये प्यो किस तरह कह सकता है कि मेरा बच्चा मेरे नाल सहमत ही नहीं, मेरे विचारां नाल सहमत ही नहीं। शरीर करके बहुत वड्डा है हरनाकश, अकल करके बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। शरीर करके बहुत छोटा है प्रहलाद, बहुत छोटा है, अकल करके बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। दोस्ती नहीं बनी, रिश्ता नहीं जुड़िया। रिश्ता जुड़ना तो एक पासे, दुश्मनी हो गई, बड़ी करारी दुश्मनी। प्यो पुत्र दे इस कदर भी दुश्मनी हो सकती है, शिखर की एक प्रमाण दिता जा सकता है हरनाकश ते प्रहलाद, प्यो पुत्र की दुश्मनी। भरा भरा की दुश्मनी का उदाहरण दिता जा सकता है औरंगजेब, शुजा, मुराद ते दारा, तिने भरा उसने अपनी अखां के सामने कतल किए, तड़पा के मारे, तिने भरा। भरा भरा दे दुश्मनी, प्यो पुत्र दे दुश्मनी, दूरी है, बड़ी दूरी है। भावें औरंगजेब, शुजा, दारा, मुराद किसी हद तक शरीरक तल ते समतल ने, जवान ने सारे, पर आंतरिक बहुत दूरी है, अंदर की बहुत दूरी है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अपने तो वड्डा, अपने तो छोटा। एक ईर्षालु है, एक प्रेम नाल भरिया हुआ है, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। एक क्रोधी है, एक दयालु है, संबंध नहीं जुड़नगे। एक निर्माण है, एक हंकारी है, नेड़ता नहीं होगी, भावें बाहरों सारी जिंदगी कट्ठे रह जान। एक मूर्ख है, एक सियाणा है, आंतरिक संबंध नहीं जुड़नगे, भावें सारी जिंदगी कट्ठे रह जान। और ये रिश्ता जो सारे रिश्तियां नूं जन्म देंदा है, पति पत्नी का रिश्ता, महाराज कहते ठीक है सारी जिंदगी कट्ठे रह गए, फिर भी कट्ठे नहीं ने, फिर भी एक नहीं ने, आंतरिक तो कोई संबंध जुड़िया ही नहीं, अंदरूनी तो कोई तालमेल बैठे ही नहीं। ये तो पशु भी कट्ठे रह जाते हैं, समतल नहीं है। इस वास्ते सीधा ही कह देता, खुले शब्दों च कह देता, धन फिर ए ना आखियन, ये कोई पति पत्नी नहीं ने। बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कही सोए। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा बहुत उच्चा, गुरु बहुत उच्चा, और इतना उच्चा कोई होवे ना, एवड ऊंचा होए कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। उतनी बुलंदी तक पहुंचे बिना ये संबंध किमें जुड़ेगा, ये रिश्ता किमें जुड़ेगा। एवड ऊंचा होवे कोए, किन्ना जिन्ना गुरु उच्चा है, किन्ना जिन्ना प्रभु उच्चा है। इत्थे फिर कह सकते हैं, हे गुरु असी किमें उच्चे होइए। गुरु कहंदा है तू पकड़ मेरी बांह, परमात्मा कहंदा है तू पकड़ मेरी बांह। परमात्मा दी बांह गुरु, गुरु दी बांह शब्द पकड़। मैं फिर दोहरावां, परमात्मा दी बांह गुरु, गुरु दी बांह शब्द पकड़। और ये बांह इस वास्ते कि तू मेरी बराबरी दे तल ते आ जाए। ऐसा करके भी दिखाया गया।
कल तक लैना गुरु नानक दे कदमां ते सिर रखदा सी, अज गल उल्टी हो गई, गुरु नानक ने अपना मस्तक लैणे दे कदमां ते रख दिता है। लैणे दी फिराइन नानका दो ही खटिए, फिराइन परिक्रमा, गुरु नानक परिक्रमा पे कर देन लैणे दी। 5 परिक्रमा कीतियां ने, नारियल रखिया, 5 पैसे रखे, अपना मस्तक लैणे दे कदमां ते रख दिता है। लैणे दी फिराइन नानका दो ही खटिए, कल तक तो कुछ होर सी, अज कुछ होर है। मैं फिर अर्ज करा, रिश्ता समतल दा हुंदा है। गुरु वर्गा हो गया, मनुख प्रभु वर्गा हो सकता है, और प्रभु वर्गे होए बिना प्रभु नाल संबंध भी नहीं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा हरि है वैसा हो, उस तो बिना नहीं गल बनेगी। मैं फिर अर्ज करा, आम तुसी जगत दिश देख सकते हो, जिस नाल बहुत उठना बैठना होवे, जो बहुत प्यारा लगे, समझ लेना कुछ तालमेल बैठे है, कुछ ना, चलो कुछ अंश ते तालमेल बैठे, वरना नहीं। हर एक दा कोल बैठना नहीं चंगा लगता, हर एक कोल मनुख बैठ के भी राजी नहीं, वक्ती बैठ गया गल वखरे है। तालमेल जुड़े बिना गूढ़े संबंध नहीं जुड़ते। तो सब तो गूढ़ा संबंध तो यह है कि एक जोत इकमिक हो जान, भगत ते भगवान इकमिक हो जान। भगत कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछाने। कबीर राम हो गए, राम कबीर हो गए। कल मैं हरि नू लभदा सी, अज हरि मैनू लभदा है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। बराबरी हो गई, रिश्ता बराबरी दे तल ते जुड़दा है। तो इसका मतलब है परमात्मा की बराबरी चाहिए, गुरु की बराबरी चाहिए। गुरु बराबरी देंदा है, अपनी बांह दे रहा, खड्डे च भावें बंदा खड़ा है, सिख खड्ड दे च खड़ा है, गुरु शिखर ते बैठा है, कहता पकड़ मेरी बांह, आ मेरे को। परमात्मा ने हर पासे वसीले बना रखे ने अपने तक पहुंचने लई, मेरे तक आवे। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। और कबीर कहते ने, मैं हुण उस सिंहासन ते जा बैठा जिस ते राम बैठा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोय न सके पछाने। ये सारे उदाहरण ने, प्रकरण ने। तो राम नाल तालमेल उदय उस वक्त ही बैठ सकता है जब कोई राम वर्गा होवे। मुश्किल है, कठिन है। उस तो पहले थोड़ी जी भी घाट रह गई है और जिंदगी का अंत होया है, फिर जन्म होवेगा। ये जोड़ा जन्म आता है, ये जमांदरू कोई भगत आता है, जमांदरू कोई अभ्यासी आता है, जमांदरू ही साधु आता है। कोई कमी रह गई है पिछले जन्म में। 5 साल दे ने बाबा श्री चंद घरों निकल जाते हैं, सारा सारा दिन रुख दे थल्ले बैठ के धूणा तपा के उत्थे बैठे रहते हैं, क्योंकि साधना उन्होंने आरंभ की सी। लोग सर्दियों के दिन सन, धूणा तपा लेना, बैठे रहना, न रोटी की फिक्र न पानी की। माता लभदी रह जाती सी ते पिता उदासियां ते, गुरु नानक बार भरमण ते, मां लभदी है, लभदा नहीं श्री चंद। सुलखनी जी लभदियां ने कि बच्चा किथे चला गया। टोलदियां किधरे बयाबान जंगल दे किसे रुख दे थल्ले बैठे, धूणा तपाया, उत्थे बैठे 5 वरियां दा बच्चा। कपड़े नहीं पहनदा सी, सिर्फ कुपीन। सोहने सोहने मां ने कपड़े बनाने, चुक के परे सुट देने।
ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ 99 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 100 ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਕੋਈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁਰਬਲਾ ਤਪ, ਪੁਰਬਲਾ ਜਪ। ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਦ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਭਾਉਰ ਨਾ ਭਾਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਅਦ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਦ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। तो पिछला बोध है कबीर नो, पिछला ज्ञान है। इतना जो अगे चला गया उसका ज्ञान नाश नहीं आता, और वो तड़प जन्म तो ही नाल चल पैंदी है। वो श्री चंद के अंदर भी सी, और जिन्हां जिन्हां दा श्री चंद नाल तालमेल बैठे, खास करके उन्हां लोकां दा जिहड़े उसे ही तल दे सन। बाबा श्री चंद पिछली साधना बड़ी प्रबल सी ते जन्म तो ही मन उदास। बाबा श्री चंद जी दे नाल शब्द जुड़ गया, उदास। घर दे च उदास, परिवार दे च उदास, पदार्थां दे च उदास। उदासी हर वक्त बनी है। जिस तो मनुख उदास है उस नाल रिश्ता किस तरह जोड़ेगा? जिस तो मनुख उदास है उस नाल संबंध किस तरह जोड़ेगा? भाई संतोख सिंह जी जी कथा लिखी है, हैरानगी है। सारा सारा दिन मां लभदी रहिंदी सी, कित्थे गया? शहर दे ते मिलदा नहीं सी, किसी दे घर ते मिलदा नहीं सी। चलो शहर तो बाहर लभी है, तो जंगल दे किसी बियाबान रुख दे थल्ले धूणा बाल के बैठा है, लीन अपनी साधना दे। सवेरे टोलना, शामी लभना, दिन भर का कुछ खादा नहीं पीता नहीं। ये पूर्वली साधना तो बिना, पूर्वले जप तो बिना हो नहीं सकता ऐसा। ये पूर्वली साधना सी। शमस तबरेज़ ने तो इत्थे तक लिख दिता है, मैं अपनियां पिछलियां 9 मावां दे नाम ही जानदा, और मैं एक दफ़ा नहीं आया दुनिया ते। बाज आमदम ता यार राह मेहमां कुनम। बार बार आया, कोई एक दफ़ा, कई दफ़ा आया। इस फकीर दी मुल्तान दे पुट्ठी खल ला के मार दिता गया सी। इसनों तालमेल नहीं बैठा जगत नाल, संसार नाल। फिर एक होर गल गहरी करदा है, कहंदा है पास बाने हर में दिल शब हमा शब। मैं सारी सारी रात जाग के दिल दी चौकीदारी करदा रहा, पहरा देंदा रहा। पासबानी कहंदे ने पहरा देना, रखवाली करनी। पास बाने हर में दिल शब हमा शब। सारी हमा सारा, सारी रात, हमा कहंदे ने तमाम, सारी 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 रात जाग के जब जगत सो जाता है, मैं अपने दिल की पहरेदारी करता रहा। तादरीन परद जुज अंदेशा ना गुजारम। जेड़े रब्बी गुण मैं कट्ठे कीते न, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई लुट के ना ले जाए, कोई ऐसा ख्याल ना आ जाए मेरे गुण चले जान, कोई ऐसी विचार मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए कि इकट्ठी कीती बंदगी मेरी लुटी जाए। मैं तो सारी सारी रात जाग के अपने दिल की चौकीदारी करता रहा। कोई अपने घर की कर देन चौकीदारी, अपनी धन संपदा की करते हैं, कहता मैं दिल की चौकीदारी करता रहा। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, पातशाह कहते मैं फकीर किसनों कहना?
ये पहले पातशाह दी जी बोल थोड़े सामने रखा। दिल दरबानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते दरवेश कौन है? दिल दरबानी जो करे, जो अपने दिल की दरबानी करता है, चौकीदारी करता है। ये जो सवेरे नितनेम किया है किधरे लुटिया तो नहीं जाएगा। ये जो 5-10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा घंटा वाहिगुरु मंत्र का जप किया है किधरे कोई लै तो नहीं जाएगा। तो चौकीदारी करने की लौड़ पै जाती है अगर दिल दे कुछ है। दिल दे है ही नहीं कुछ, की चौकीदारी करनी। अक्सर लोगों के दिल प्रेम ज्ञान भावना शील संजम दया निर्वैरता निर्भयता तो खाली ने, की रखवाली करनी। रब्बी रस आनंद सुकून शांति इस तो खाली ने, की रखवाली करनी है ही नहीं कुछ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो सावधान हो के अपनी दिल की रखवाली करने लग पे समझ लेना कुछ है इस दे दिल च। सावधान है अपने दिल के प्रति। दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। फैसला तो करते ने करना है दरवेश है कि नहीं, ये असी नहीं करना फैसला। ये चोर है कि नहीं, ये साडा फैसला नहीं है। दुनियावी तौर पर चलो कोई मुनसफ करे, अध्यात्मक तौर पर परमात्मा करता है फैसला, न्यायकारी है, बड़ा इंसाफ पसंद है। एक कहता एक दिन खुदा मन गया तू रोज़ तरले लेना, रोज़ दुआ करने लिए खड़ा हो जाना, पंजे पंजे वक्त नमाज पढ़ी जाना, चल अज तेरे घर चलते हैं। कोई 11-12 सफ़ियां दे उत्ते इस महापुरुष ने अपनी कथा लिखी है। दीवान शमस तबरेज़ इसनूं कहंदे ने। उस किताब का नाम है दीवान शमस तबरेज़। तबरेज़ शहर का नाम है, ईरान का, तो शमस इस फकीर का नाम सी। तबरेज़ तो आया सी, इस वास्ते इसका नाम पै गया शमस तबरेज़ी। हिंदुस्तान दे मुल्तान दे इसकी पुठी खल ला के मारिया गया उस जमाने। एक कहता खुदा मन गया तेरे घर चलते हैं। तू बहुत तरले लेंदा रहा, कई दिनों तो तरले लेंदा रहा, चलो। ये फकीर कहता है उस दिन मैनू पहली दफ़ा पता चलिया कि खुशी दे मनुख फुल की तरह हो जाता है। सारे भार लै जाते ने, मेरे पैर जमीन ते नहीं टिकते सन। कहते ने तो फुलिया नहीं समांदा, ये पैर ते जमीन ते नहीं टिकते। हाँ, नाम जपद्या कई दफ़ा शरीर बिल्कुल हौला हो जाता है, दिमाग का बोझ सारा लै जाता है, मनुख अपने आप को हल्का फुल महसूस करता है। तो ये मुहावरा बन गया, इन्नी खुशी इतना आनंद तेरे पैर जमीन ते नहीं टिकते। इस फकीर ने कहा मैं खुद देखा मेरे पैर जमीन ते नहीं टिकते सन, मैं फुलिया नहीं समांदा सी। खुदा मेरे नाल चल रहा मेरे घर। कहता घर की जब चौखट आई तो खुदा ने मैनू ये आख्या फकीरा मैनू लै ते आया, अंदर देख मेरे बैठन ली थां है कि नहीं, तू लै ते आया मैनू। शमस तबरेज़ कहते हैं हाँ खुदा, ये मैनू ख्याल नहीं आया, मैं देखदा। ये फकीर कहता जब मैं अंदर आया तो जिहड़ा सिंघासन खुदा लई सी उस ही सिंघासन ते हंकार बैठा सी, तकब्बुर गरूर। उस ही सिंघासन ते जुल्म क्रोध बैठा सी, उसी सिंघासन ते वासना काम बैठी सी, और उसी सिंघासन ते मोह बैठा सी, लोभ बैठा सी, और फिर उन्होंने दे संगी साथी बैठे सन। ये फकीर कहता मैं उन्होंने हाथ जोड़े तो सजदा भी किया, खुदा तो बाद अज मैं थानू सजदा करदा, निकलो जाओ। जैसे पातशाह कहते ना नस वंजो किल विखो करता घर आया। हूँ तो करता पुरख चौखट ते आ गया, बूहे ते आया, निकलो तुसी क्यों बैठे हो।
निकलो, ऐ दुख संताप ऐ पाप निकलो। हुण तुसीं क्यों सिंघासन मल के बैठे हो? न समझो किल वेखो करता घर आया। सेम यही तरला इस फकीर दा। निकलो, जाओ, खुदा बूहे ते खड़ा है। ये सिंघासन उसदा है और अज मेरे नाल आया है। निकलो तुसी। ये फकीर ने जो लंबी चौड़ी वार्ता लिखी, मुख्तसर में अर्ज करा, वो सारे बैठे कह लगे, फकीरा खुदा नूं ते तू अज ले आया ना, तो असीं दी कई जन्मां तो बैठे हैं, किस तरह चले जाइए? नहीं जाना। खुदा नूं ते तू अज ले आया, असीं कोई अज दे बैठे हैं? बहुत पुराने अजल तो बैठे हैं। तो शब्द है अजल। अजल है आद तो, जदों दा तू है उदों दे बैठे हैं। किस तरह निकल जाइए? नहीं निकलना। इत्थे फकीर कहता है, बहुत सन मैं कल्ला, मेरा झगड़ा हो गया। जैसे कबीर कहते ने, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखें घर बार मना। वो पंज ने मैं कल्ला, तो मैं हुण अपने घर नूं किवें बचावां? जो मैं पुण्य कट्ठे कीते ने, जो मैं ज्ञान इकट्ठा कीता है, जो प्रेम निर्वैरता इकट्ठी की, किवें बचावां? अवर पंच हम एक जना, क्यों राखें घर बार मना। ये फकीर कहता, मेरा झगड़ा हो गया, जित होई मेरी हंकार ते, उन्होंने मैं पकड़ लिया, ढा लिया, और पकड़ के मैं उसनों बाहर कढ़िया, ते आखे अंदर नहीं आना, तो हुण मैं क्रोध नूं बाहर कढ़ना है। पर जिन्नी देर च बांह पकड़ के क्रोध दी ये बाहर कढ़दा है, हंकार फिर अंदर आ जाता है। लोभ नूं बाहर कढ़दा है, क्रोध फिर अंदर आ जाता है। एक नूं बाहर कढ़दा है, एक जो बाहर पहले कढ़िया सी फिर अंदर आ जाता है। ये फकीर कहता है, झगड़े च सारा दिन लंघ गया। सारे दिन तो मुराद सारी उम्र लंघ गई, सारा दिन लंघ गया। चौखड़ ते खुदा उड़ीकदा उड़ीकदा वापस चला गया, और ताइयां मार के उस दीवान, उस किताब दे च फकीर रोया है, मेरी यह जिंदगी भी अकारत चली गई, बर्बाद चली गई, झगड़ दिया। कबीर इसे दा जिक्र कर देन, कहत कबीर ए पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। सारी जिंदगी ते लड़दे ही लंघ गई, झगड़दे ही लंघ गई, और गजब दी गल, झगड़न दे च हार ही मिली, जित नहीं मिली। जित मिल जाए तो समाधि, जित मिल जाए तो फिर खुदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, फकीर ते वो है, साधक ते वो है, गुरसिख ते वो है, जो अपने दिल की रखवाली करे। अज आसा दीवार सुनी है कि रह सकेगी दिल दे च। अज तू सुखमनी साहब का पाठ किया है कि रह सकेगा दिल दे च। अज तू वाहिगुरु मंत्र का जप किया है कि रह सकेगा दिल दे च। दिल दरवानी जो करे दरवे सी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। इस फकीर ने अगाह लंबी चौड़ी वार्ता लिखी है, कहता मैं दौड़िया, मैं भजया, भावें बहुत दूर खुदा निकल गया सी, रस मैं गवा बैठा सी, पर फिर भी मैं पकड़ लिया और आख्या, खुदा मैं उन्होंने नहीं कढ़ सकता, तू मेरे नाल आ अंदर, तू कढ़, मैं नहीं कढ़ सकता। घर मेरा है पर मैं घर का मालिक नहीं रहा। घर मेरा है पर घर मेरे काबू च नहीं है, तू मेरे नाल चल। कहते ने मैं तरला लिया, खुदा मन गया। चलो तेनों हुण पता चलिया, तू बूए तक ले आया सी मैनू, उदों मदद क्यों नहीं मंगी। यकीन जानो मनुख अपनी शक्ति दे नाल, अपनी अकल दे नाल गल नहीं बन सकेगी। परमात्मा तक पहुँचने वास्ते परमात्मा अपनी बांह देंदा है। उन्हें बांह दिती है गुरु के रूप में, गुरु ने बांह दिती है शब्द के रूप में, पकड़ परमात्मा की बराबरी ते आ जाएगा। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए।
जितना उच्चा परमात्मा है इतना उच्चे होए बिना परमात्मा की समझ नहीं पाएगी। पर इतने उच्चे किवें होइए, परमात्मा ने बांह दिती हुई है, उन्हें अपना सहारा दिता होया, वो नीवा नहीं रखना चाहता। अशरफुल मखलूका, धरती का सरदार बनाया, तैनू अपनी बराबरी ते लियाना चाहता है। उन्हें सहारे जो है पकड़ाए हुए ने, परमात्मा ने सहारा पकड़ाया होया है, बांह दिती हुई है गुरु के रूप में। तो हुण गुरु का खुलासा करिए, गुरु ने बांह दिती हुई है शब्द के रूप में, आवाज़, धुन। तो मैं इसे दा ही कुछ दिनों तो खुलासा कर रहा सी, बैठन लगे मैं सोचिया सी इस प्रकरण नूं अज समाप्त कर दें, नहीं होया समाप्त। यकीन जानो इच्छा सी कि बहुत दिनों तो सिर्फ एक विचार नूं तोड़ रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ धर्म के होर कई पहलू ने, पर गुरु की जैसी इच्छा है इसनूं कल खुलासा करांगे, खोलण की कोशिश करांगे। चेता रखना, परमात्मा ने अपनी बांह दिती हुई है, परमात्मा ने अपने बोल दिते हुए ने। तो मेरे नाल बोल सकदा है मेरे बोलां करके, अपने बोलां नाल नहीं। जिस नाल बोलना है उहदी भाषा मैं ना समझा, मेरी भाषा वो ना समझे, किस तरह तालमेल बैठेगा। तो है कुछ परमात्मा की भाषा, ये भी मैं अर्ज कर दें, है कोई परमात्मा दे बोल, है कोई उसकी शब्दावली, है कोई उसकी नियमावली। तो जस असी देखते हैं एक बच्चे नाल जो अज बोलना सीखिया है बच्चा, वो नाल माँ बोल रही है बच्चे दे बोलां च, कोई लंबी चौड़ी वार्ता नहीं रख रही। जिवें तुतला के वो बच्चा पिया बोलता है, माँ उस तरह बोलती पई है, पिया उस तरह पिया बोलता है, तां ही तो संबंध जुड़ेगा, वरना किस तरह। पर जो परमात्मा बोलता है, परमात्मा वर्गा ही बोलना पएगा। तो परमात्मा वर्गे बोलीए, बोल कित्थों ले आईए? परमात्मा कहता लै मेरे बोल ले, ये सब खसम दे बोल ने, ये सब परमात्मा दे बोल ने, अपने नहीं ने। ये जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। खसम नाल जुड़ सकदा है खसम दे बोल नाल, परमात्मा नाल जुड़ सकदा है परमात्मा दे बोलां नाल। और ये सब परमात्मा दे बोल ने। इस वास्ते इस चक्कर च ना पैना कि बाणी का पाठ कोई नाम सिमरन नहीं है, बाणी का पाठ महान नाम सिमरन है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, बाणी का पाठ परमात्मा के नेड़े लै जाता है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई, इते नाम है। इते नूं किसने कह दिता बाणी का पाठ सिमरन नहीं है, बाणी का पाठ जप नहीं है, बाणी का पाठ साधना नहीं है। तू एक अखर वाहिगुरु मंत्र का जप उन्ने चिर तक कर ही नहीं सकेगा, भावें मंत्र भी परमात्मा तो वाया गुरु नानक ने पकड़िया इसनों, जिन्ने चिर तक इन्हां सारे बोलों का रटन ना करें, तां तेरा संबंध जुड़ेगा। खुलासा कल, क्योंकि समा हो गया थोड़ा होर ना जो है वक्त लईए। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान